A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue this chapter number 3 of your book, Indian Constitution at Work, and the name of your chapter is Election and Representation. In our last class, we discussed about proportional representation in India. Okay, how proportional representation work in Rajya Sabha election. We have gone through that concept. This was the third variant of proportional representation which we are following in India for the elections of President, Rajya Sabha, Vidhan Parishad, Vice President. Okay, so now our today's topic is you all are like uh, you all are like uh, having the question like why did India adopted the FPTP system? Like देखने में हमें लग रहा है कि PR सिस्टम कितना सही है, मतलब हर एक पार्टी को जितने वोट्स मिल रहे हैं और ये रिलायबल भी है, जितने वोट्स हैं उतनी प्रपोर्शन सीट्स मिल गए एंड इट इज रिलायबल. बट क्वेश्चन arises why did India adopt the FPTP system? FPTP system first passed the post system which we have borrowed from the British Constitution. ठीक है, British Constitution से हमने ये जो provision है इंडिया में अडॉप्ट किया है, ये इलेक्शन सिस्टम का फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का जो ये प्रोविजन है. ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई डिड इंडिया अडॉप्टेड द एफपीटीपी सिस्टम. So the answer is it is not very difficult to guess, because if you have carefully read the box explaining the Rajya Sabha elections, you should have noticed that it is complicated system which may work in a small country but would be difficult to work in a subcontinental country like India. Okay, the reason for the popularity and the success of the FPTP system is its simplicity. अब देखो obviously क्या है, Rajya Sabha election wala. How does PR work in Rajya Sabha election? We have seen that we have to first of all we have to pull out the votes. How much votes a candidate need, and after that we have seen if single candidate or the required number of candidate is not chosen by that system. By that election system, by the priority basis, then the votes got transferred. It is one of the most complicated process. एक बहुत complicated process है, and maybe small countries like Israel, Netherlands, or maybe small countries में ये system easily work कर सके. But as you all know, India is a very diverse country, and it is difficult to follow this type of system in a very vast nation, in a very diverse nation. ठीक है, वन ऑफ द पॉपुलस नेशन, बहुत वास्ट है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और वहां पे ऐसे सिस्टम को, पीआर सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है. सो द मेन रीजन, आप नंबर 1 लगा लीजिए चाहे. ठीक है, द मेन रीजन फॉर द popularity and the success of the first past the post system is its simplicity. So the entire election system is extremely simple to understand even for common voters. ठीक है, जो अगर छोटे से मतलब जो एजुकेटेड इलिटरेट है या इलिटरेट है, ठीक है, जितने भी वोटर्स हैं, बहुत या फिर किसी को पॉलिटिकल साइंस की या पॉलिटिक्स की नॉलेज है या नहीं है, वो भी क्या है, इजीली इस सिस्टम को क्या कर सकता है, समझ सकता है कि वोटर्स क्या करेंगे, वोट करेंगे, जिस भी पार्टी को सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएंगे. सो this system of election is very simple to understand even for the common voters who may have no specialized knowledge about politics and elections. Okay, so the first and the very main reason for its adoption is its simplicity. So voters have a clear choice
ठीक है, कि इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शंस के टाइम पे क्लियर चॉइस रहती है वोटर्स के पास. वोटर्स हैव टू सिंपली इंडोर्स अ कैंडिडेट. इंडोर्स मींस टू डिक्लेयर अ कैंडिडेट और अ पार्टी व्हाइल वोटिंग. वोटर्स को पता होता है हम किसके लिए वोट कर रहे हैं, ठीक है. वोटर्स नो कि यहाँ पे जैसे हमारा, ठीक है, ये कंट्री है, ठीक है, सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. अब लोकल लेवल पे लोग जैसे यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है यहाँ का ही कोई कैंडिडेट है, वो इलेक्शन के लिए क्या हो गया है, एक नॉमिनेटेड है, तो उनको पता है ये पर्सन कैसा है, ठीक है. नॉट फुली बट हाँ समहाउ दे नो कि ये पर्सन कैसा है, रूट लेवल पे ही इज वर्किंग और नॉट. तो यहाँ पे जो वोटर्स हैं, जो वो किसको वोट करते हैं, दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द कैंडिडेट्स नॉट टू द पार्टी, ठीक है. कैंडिडेट को वो करते हैं ना कि पार्टी को, कि ये कैंडिडेट यहाँ पे हमारे लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा. और अगर वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, अगर वो वर्क करता है तो वोटर्स उसे ही वोट करते हैं. So the FPTP system offers voters a choice not simply between parties but specific candidates. Okay. So in other electoral systems, especially PR system, voters are often asked to choose a party and the representatives are elected on the basis of party list. अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका PR सिस्टम है वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको इजीली बोल दिया जाएगा कि अगर आप पार्टी को चूज कर रहे हो तो पार्टी अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेगी, पार्टी अपने अकॉर्डिंग किसी भी कैंडिडेट को चूज कर लेगी. और पार्टी को भी थोड़ी ना पता होता है कि ये जो कैंडिडेट है ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है. तो ये सबसे बेसिक रीजन, सबसे मेन रीजन जो है एफपीटीपी सिस्टम को इंडिया में अडॉप्ट करने का है वो है इलेक्शन, इसकी सिंप्लिसिटी. एंड द सेकेंड रीजन क्या है, द सेकेंड सिस्टम, द सेकेंड रीजन इज FPTP system offers voters a choice, ठीक है, choice of candidates, not choice of parties but choice of candidates, जिससे कि वोटर्स क्या कर सके, उनको एक क्लियर विजन हो कि हम इसको चूज करेंगे, ठीक है. ये अगर ये कैंडिडेट इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स आता है तो ये कैंडिडेट्स फलाना फलाना काम करेगा, ठीक है. तो दिस वाज द सेकंड रीजन कि व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, FPTP system. So now we will discuss this cartoon later on. More importantly, the makers of the constitution also felt that PR based election may not be suitable for giving stable government in a parliamentary system. Now the third basic point is जो हमारे constitution makers थे, ठीक है, the members of the constituent assembly, like they felt that कि जो PR system है वो एक suitable और एक stable government नहीं देगी. As you all know कि proportion के basis पे होगा, ठीक है, प्रपोर्शन के बेसिस पे सीट्स मिल जाएंगी. तो किसी के पास 20 सीट है, किसी के पास 15 सीट है, किसी के पास 100 सीट है, किसी के पास 200 सीट है. तो इससे क्या होगा, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेंगे, पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा. हो सकता है कि एक पार्टी चाहती हो कि हम ये पॉलिसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी लेकर आए, दूसरी पार्टी चाहती है कि नहीं हम ये पॉलिसी लेकर आते हैं, तीसरी पार्टी बोलती है कि नहीं हम ये. तो क्या है, तीनों में ही क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई भी डिसीजन जो है इफेक्टिवली ले नहीं पाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट उसमें हमेशा रहेगा. So the nature of parliamentary system of executive, in the next we will talk about it in our next chapter कि कैसे executive system जो है work on करता है. This system requires that the executive has majority in legislature. जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी हैव भारतीय जनता पार्टी इन द मेजॉरिटी. तो मेजॉरिटी में एग्जीक्यूटिव में है तो कोई भी डिसीजन है, ठीक है, मेजॉरिटी में लिया जा रहा है, एक पॉलिसी है, तो ठीक है, एक पॉलिसी के लिए क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बीजेपी के, तो वो इजीली ले पाते हैं कि हाँ ठीक है. वही अगर सपोज 10 किसी पार्टी के, कोई रीजनल पार्टी पे होता, फिर 10 किसी और का होते, फिर 10 किसी और के होते, उन सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है, ओपिनियंस है, और कोई भी डिसीजन ही नहीं ले पाती, राइट. सो PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes.
शेयर ऑफ वोट्स पे होता है. द एफपीटीपी सिस्टम जनरली गिव्स द लार्जेस्ट पार्टी और कोएलिशन सम एक्स्ट्रा बोनस सीट्स. ठीक है. अब मैं जैसे हमने कांग्रेस का एग्जाम्पल पढ़ा था 1984 इलेक्शन में कि 80% सीट्स चले गए थे. ठीक है. तो वहां पे एक स्टेबिलिटी थी, राइट. कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी मिल गया था जो लार्जेस्ट पार्टी थी. ठीक है. उसको कुछ बोनस सीट्स भी मिल गए थे. ठीक है. तो इससे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो बहुत स्मूथली फंक्शन कर पाती है. ठीक है. और हमारे इंडिया के जैसे डाइवर्स नेशन के लिए, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि हर 5 किलोमीटर्स में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है. इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन के लिए पीआर सिस्टम इज नॉट सूटेबल. ठीक है. बिकॉज कोई भी अपना एक रीजनल पार्टी बना के बैठ जाएंगे. अगर उसको 2% भी मिला है तो 2% सीट्स उनकी हो जाएंगी और डिसीजन स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगी. ठीक है. So for the stability of the government, for the smooth functioning of the parliamentary government, we have adopted this system. Okay. So finally, FPTP system encourages voters from different social groups to come together to win an election in a locality. अब देखो ये one more main reason. India is a diverse nation. ठीक है. डिफरेंट हर एक चीज में डाइवर्सिटी, रीजन, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, हर एक चीज में यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. और ये जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, क्या करती है, एक यूनिटी, एफपीटीपी सिस्टम यूनिटी लाने की कोशिश करता है. यहाँ पे हम पार्टी के लिए वोट, ये कैंडिडेट्स के लिए वोट कर रहे हैं एंड देयर आर कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन अ सिंगल पार्टी. ठीक है. सपोज ये तीन जो है डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं. ठीक है. और ये तीनों ही एक पार्टी के मेंबर्स हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल पार्टी ए के. तो ये क्या है, डिफरेंट कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को, वेराइटी को क्या करता है, हमें यूनाइट करने की कोशिश करता है. तो एफपीटीपी सिस्टम encourages voters from different social groups and they came together and win an election and it encourages to make us unite. ठीक है. हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को, हमारे कल्चर को, हर एक को हमें यूनाइट करने की कोशिश करता है. ठीक है. सो इट इनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन इंडियन वाइड ये जो पीआर सिस्टम है वो क्या इनकरेज करता है, ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन. फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है. ये एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. हिंदूज हैं. ठीक है. हिंदूज आ गए. ठीक है. अब इंडिया में जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदूज की है. ठीक है. ऑल्दो इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन बट फिर भी सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है हिंदूज की है. तो यहाँ पे अगर सपोज इट रीजनल और रिलीजन के बेसिस पे अगर कम्युनिटीज बन जाती, पार्टीज बन जाती, तो हिंदू कम्युनिटी क्या है, उस पर्टिकुलर दैट पार्टी को ही क्या करती, वोट करती. और 80% पॉपुलेशन जो है हिंदूज की है और उन्होंने दे दिया तो 80% सीट्स क्या है, हिंदूज के पास चली गई. कोई फॉर एग्जाम्पल जो 20% सीट्स हैं, 20% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके. तो 20% जो है मुस्लिम्स की है और उनको खाली 20% वोटर्स, वो भी अपनी एक सेपरेट एक पार्टी बना के वो बैठ गए और जितने भी मुस्लिम्स हैं उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी ये पर्टिकुलर पार्टी को दिया, तो ओनली 20% सीट मुस्लिम्स के पास जाएगी. तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, अराइज होंगे, कॉन्ट्रोडिक्शंस होंगे. ठीक है. तो एक स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी, यूनिटी भी नहीं रहेगी. बट वो एक एफपीटीपी सिस्टम में डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट जेंडर से लोग आ रहे हैं और इससे ये हमें एक वोटर्स को, सिटीजन्स को यूनाइट और एक एज अ ब्रदरहुड, ठीक है, एक ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप करता है. ओके. नाउ नेक्स्ट, the experience of working of the constitution has confirmed the expectation of the constitution makers. The FPTP system has proved to be simple and familiar to ordinary voters.
वेरी मेन रीजन, ठीक है, ऑलरेडी टोल्ड यू कि एफपीटीपी सिस्टम एक बहुत इजी है समझना, ठीक है, कोई भी सिटीजन इसे इजीली समझ सकता है, ठीक है। और हमारा जो एक्सपीरियंस है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज कंफर्म दैट द जो कंफर्म द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड इट प्रूव्ड टू बी सिंपल। हर एक वोटर, ऑर्डिनरी वोटर भी इसके प्रोसेस को इजीली समझ सकता है, फेमिलियर हो सकता है। इट हैज हेल्प्ड लार्जर पार्टीज टू विन क्लियर मेजॉरिटीज एट द सेंटर्स एंड द स्टेट लेवल। अब अभी आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी है इंडिया में और उनको क्लियर मेजॉरिटी मिली है, तो ये किस वजह से मिली है? एफपीटीपी सिस्टम के वजह से ही मिली है ना। फॉर एग्जांपल कोई पीआर सिस्टम होता तो क्लियर मेजॉरिटी होती? नहीं होती। सो द सिस्टम हैज आल्सो डिस्करेज्ड पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट all their votes only for one caste or community. Normally the working of the FPTP system results in a two party system. Normally देखो इंडिया में हम देखते हैं दो मेन पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी। तो नॉर्मली जो एफपीटीपी सिस्टम है यहाँ पे टू मेन पार्टीज हो जाती है, टू मेन पार्टीज होती है, ठीक है। एंड देयर आर टू मेजर कॉम्पिटिटर्स फॉर पावर एंड पावर इज ऑफन शेयर्ड बाय दीज टू पार्टीज अल्टरनेटिवली, मोस्टली देखा जाता है। It is difficult for new parties or the third party to enter the competition and share power. In this respect, the experience of FPTP in India is slightly different. After independence, though we adopted the FPTP system, there emerged a one-party dominance, and along with it, there existed many smaller parties. After 1989, India is witnessing the functioning of the multi-party coalition. देखो नॉर्मली एफपीटीपी सिस्टम में हमें यही देखने को मिलता है कि दो पार्टीज में जो है डिवाइड हो जाते हैं, ये दो मेजर कॉम्पिटिटर्स होते हैं। बट इंडिया में हमने देखा कि पहले वन पार्टी डोमिनेंस था, ठीक है, बट फिर 1989 फिर धीरे धीरे 1960s में क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और भी स्मॉल जो पार्टीज हैं वो इमर्ज होके आने लग गई थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, ब्रेक होने लग गया था, ठीक है, कांग्रेस का जो ये डोमिनेंस था वो ब्रेक होने लग गया था। एंड आफ्टर 1989 क्या हुआ था, बहुत सी स्मॉल पार्टीज भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीकानेर है, यहाँ का ही कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे किसी ने एक अपनी पार्टी बनाई है, तो वो पार्टी क्या है, अपने रीजनल लेवल पे तो अपने सोसाइटी सोशल लेवल, अपने कम्युनिटी लेवल पे तो वर्क कर रहा है ना। वो क्या करता है कि नहीं, हम ना इस मेजर की जो नेशनल पार्टी है उसके साथ मिल जाते हैं, दे आर वर्किंग वेल, तो उनके साथ मिलेंगे तो मतलब वी विल आल्सो गेट बेनिफिटेड। तो इससे क्या है, 1989 के बाद यू ऑलरेडी लाइक स्टडीड अबाउट द कोएलिशन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन योर अर्लियर क्लासेस, राइट। तो 1989 में हमने देखा कि मल्टी पार्टी कोएलिशंस होने लग गए, एंड एट द सेम टाइम इन मेनी स्टेट्स अ टू पार्टी कंपटीशन इज emerging. But the distinguished feature of India's party system is that the rise of coalition has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral system in spite of the FPTP system. We are following FPTP system, okay? We are following FPTP system. बट बहुत लोगों को लग रहा होगा मैम दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएगी, तो जो रूट लेवल पे है या फिर जो स्मॉल पार्टीज है, कल्चरल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, वो तो कभी एमर्ज होके आ ही नहीं पाएगी। बट with this multi-party coalition, with the rise of multi-party coalition, even in the FPTP system, smaller parties have opportunities to enter into electoral competition, ठीक है। और smaller parties को भी क्या है, बहुत सी opportunities मिलती है ना। Now there is a table given in your book. Now just look at this. Check your progress. Here are results of the Tamil Nadu Assembly election held in 2016. What would be the composition of the assembly if it was a PR system like in Israel? ठीक है, if we compare it, देखो इलेक्शंस हेल्ड इन 232, ठीक है, टोटल सीट्स 234 है, मतलब इलेक्शंस 232 में हुए थे। अब ये जैसे आपका ऑल इंडिया अन्ना मुनित्रा कज़ाहगव, ये पार्टी का नेम है, ठीक है, इनको इतने परसेंटेज ऑफ सीट्स मिली है।
तो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर पीआर सिस्टम फॉलो होता और टोटल सीट्स 232 है और अगर नंबर ऑफ वोट्स टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स कितने मिले तो सीट्स कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगेन आपका द्रविड़ा मुनेत्रा, ठीक है, ये एक और पार्टी है, इनको इतने परसेंटेज सीट्स मिली है, नंबर ऑफ सीट्स 88 है, तो अगर पीआर सिस्टम फॉलो करते तो कितनी सीट्स होते, तो गो थ्रू इट, ठीक है, कैलकुलेट इट और फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, देन वी विल डिस्कस इट कि क्या 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 आपका इसका रिजल्ट रहता, कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में रहती, who would form the government, what would be the effect of the system on the relationship of the political parties, we will talk about it, but first of all you all are supposed to find out this number, okay, and we will discuss it later on. And there is one cartoon question given on page number 61 I think, ठीक है, 61 में, yes, 61 में एक कार्टून मेंशन किया गया। नाउ what this cartoon is explaining to us, it is trying to explain us like there are some major like long statues are there, ठीक है, candidates जो हैं, ये जो आपको बिग फिगर दिख रहा है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द रूलिंग पार्टी और द जो आपके बिगर पार्टीज हैं उनके कैंडिडेट्स, जवाहरलाल नेहरू देख लो, वल्लभ भाई पटेल देख लो, ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहे हैं। These members of the ruling party are trying to listen to the tiny opposition. Was this the effect of our electoral system? ठीक है, टाइनी अपोजिशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, टाइनी अपोजिशन मतलब छोटी छोटी जो पार्टीज है, एंड दिस इज डोंट अभी प्रेजेंट सिनेरियो को मत देखना, ठीक है, ये 29 मई 1949 को ये वाला जो है आपका कार्टून बना था, तो उस बेसिस पे देखना कि क्या है, ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, ये कार्टून डिपिक्ट कर रहा है कि टाइनी ऑपोजिशन उस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही नहीं कर रहा था, मतलब उसको सुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है, बट राइट नाउ इट इज not following in India due to the multi-party coalition. टाइनी ऑपोजिशंस भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, और अगर ऐसा, इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, एक वन पार्टी डोमिनेंस है, ठीक है, वन पार्टी डोमिनेंस है, एंड ये रहा था 19 अपने फर्दर क्लास में, क्लास 12th में आप पढ़ोगे कैसे वन पार्टी डोमिनेंस आया था और कैसे वो मतलब वन पार्टी जो एरा था वन पार्टी डोमिनेंस का वो कैसे ब्रेकआउट हुआ, वी विल वो आप फर्दर क्लासेस में अपने पढ़ोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वन पार्टी डोमिनेंस को, ओके, सो दिस वाज दिस इफेक्ट, दिस द इफेक्ट ऑफ आवर इलेक्टोरल सिस्टम, क्या इलेक्टोरल सिस्टम का प्रेजेंट डे में भी क्या यही है, नो, प्रेजेंट डे में आज का जो सिनेरियो है ऐसा नहीं है, ऑपोजिशन, इवन टाइनी ऑपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, okay, so class, this is all about this topic, go through the content, ठीक है, go through the topic, and if you face any problem do let me know, and this is your work, this is your homework, you have to find out the seats in PR, ठीक है, एक आपको seats find out करने, you have the total number of seats and you have total percentage of votes, you have to find out the seats in PR system, कि अगर PR system होता तो कितनी seats होती, right? So go through it, and if you face any kind of problem do let me know. This is all about today. I hope you all enjoyed it. Thank you so much. Bye bye, take care of yourself.